شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، جس طرح ہر فن کا اپنا الگ مقام ہوتا ہے، اسی طرح ہر فنکار کی اپنی الگ شخصیت اور مقام ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ فن پہلوانی کی تاریخ برصغیر پاک و ہند کے پہلوانوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ برصغیر پاک و ہند کی دھرتی نے فن پہلوانی میں بے شمار نامور پہلوان پیدا کیے، جنہوں نے اپنی طاقت اور فن کا سکہ دنیا سے منوایا۔ آج کی ہماری ویڈیو فن کشتی کے ایک ایسے پہلوان کے متعلق ہے جس نے نہ صرف اپنے وقت کے تمام نامی گرامی پہلوانوں کو شکست دی، بلکہ رستم ہند اور ہند کیسری کے خطاب سے بھی نوازے گی۔ داستان شاہ زورہ کی 55 نمبر قسط، جو کہ پنجاب دی شان، ہند کیسری، بھارت کیسری، رستم ہند مہر دین پہلوان کے متعلق ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو خاص ہمارے کچھ ویورز کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ یہ ویڈیو الحاج مبشر اقبال لون استاداں والا، نشان سیالکوٹ گولڈ میڈلسٹ، بھتیجا عنایت پہلوان استاداں والا، فخر ہند، ستارہ ہند مرحوم سیالکوٹی کے تعاون سے بنائی گئی ہے۔ ناظرین، جنوبی پنجاب میں فن پہلوانی کے ایک منفرد عاشق سید نسیم عباس شاہ کا تعلق تحصیل چشتیاں ضلع بہاول سے ہے۔ ان کے دادا حاجی سید غلام مہدی شاہ المعروف مادی شاہ بھی فن پہلوانی کی خدمت کرتے رہے اور درگاہ حضرت شاہ عباس کے سالانہ میلہ پر کشتیوں کا انعقاد کیا کرتے، جہاں پنجاب کے نامور پہلوان کشتیاں لڑنے کے لیے آتے اور شاہ صاحب انہیں انعام و کرام سے نوازتے۔ آج کے اس دور میں ان کے پوتے سید نسیم عباس شاہ نے فن پہلوانی سے اپنا رشتہ جوڑ رکھا ہے اور اس فن سے بے انتہا لگاؤ، شوق و لگن اور فن کشتی کی ترویج و ترقی کے لیے کشتی ساڑی جند جان اور پنجابیاں دی کھیڈ کشتی کے عنوان سے 2 واٹس ایپ گروپ بنا رکھے ہیں، جہاں وہ دنگلوں کی کشتیاں اور تصاویر اپلوڈ کرتے ہیں، اور سینکڑوں ممبران پر مشتمل ان گروپس کا شمار جنوبی پنجاب میں فن پہلوانی کے سب سے زیادہ مقبول گروپس میں ہوتا ہے۔ ہم دیسی کشتی کے سب سے بڑے چینل اردو پیجز کی طرف سے سید نسیم عباس شاہ کو فن پہلوانی سے گہری وابستگی اور جذبہ خدمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ان کے اس جذبے اور لگن کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ ناظرین، بھارت کے معروف پہلوان مہر دین، جنہوں نے پاکستان میں بھی کشتیاں لڑی، سن 1937 کو راجستھان کے ضلع گنگا نگر کے گاؤں ٹام کوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا کا نام پٹھانہ پہلوان جبکہ ان کے والد کا نام جلال الدین پہلوان تھا، اور ان کا شمار اپنے وقت کے اچھے پہلوانوں میں ہوتا تھا۔ جلال الدین کو رب العزت نے 9 بیٹوں سے نوازا۔ مہر دین پہلوان کو کشتی کا شوق وراثت میں ملا۔ 8 سال کی عمر میں پہلوانی شروع کی اور اپنی ابتدائی تربیت اپنے والد جلال الدین پہلوان سے حاصل کی، اور بعد میں بخشش پہلوان ہریانہ کی شاگردی میں فن پہلوانی کی منازل طے کرنے لگے۔ معاشی حالات تنگ ہونے کے باوجود جلال الدین نے اپنے بیٹے مہر دین پر خاص توجہ دی۔ 6 فٹ 5 انچ قد اور ڈیل ڈول میں بھاری ہونے کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصہ میں مہر دین کا شمار بھارت کے نامور پہلوانوں میں ہونے لگا۔ اتر پردیش کے نامور اور گرو تلک کے شاگرد وشوناتھ سنگھ کو بلیا میں گرایا۔ یوپی کیسری جناردن پہلوان گورکھپوری، چھوٹا بنتا سنگھ پہلوان قصوریا اور پنجاب کیسری بدھ سنگھ پہلوان امریکہ والا کو شکست دی۔ وجے کمار عرف بلا پہلوان امرتسری اور 10 مئی 1969 کو کارپوریشن اسٹیڈیم دلی میں ہندوستان کے نامور پہلوان نرمل سنگھ کو شکست دی۔ مروتی وڈار اور جگدیش متر پہلوان سے برابر کی جوڑ پیش کی، جبکہ کرتار سنگھ پہلوان سے یادگار مارکے لڑے۔ ناظرین، بابو پاٹل کولہاپوری کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ یہ واحد پہلوان تھا جس نے مہر دین پہلوان کو ٹکر کی جوڑ پیش کی، ورنہ تو مہر دین بھارت کے بیشتر پہلوانوں کو اپنی جوڑ ہی تسلیم نہیں کیا کرتا تھا۔ بالو پاٹل کولہاپوری کے ساتھ مہر دین پہلوان کی 2 زوردار کشتیاں ہوئیں۔ ایک میں مہر دین فتح یاب ہوئے، جبکہ دوسری کشتی میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1969 میں ہند کیسری بنے۔ 1968 میں اجمیر میں گردیال رنداوا کو ہرا کر رستم ہند کا ٹائٹل اپنے نام کیا، اور 1968 میں ہی جے پور میں دارا سنگھ فوجی کو ہرا کر بھارت بھیم بنے۔ 1970 میں دلی میں سجن سنگھ کو ہرا کر بھارت کیسری ہوئے۔ مہر دین نے چمبا متنالے اور دادو چوگلے مہاراشٹر کو وارانسی میں ہرایا۔ مہاراشٹر کے مشہور پہلوان مروتی ماں نے ایشیا گولڈ میڈلسٹ کے ساتھ مہر دین کی 2 کشتیاں ہوئیں۔ شملہ میں مہر دین فتح یاب ہوئے، جبکہ کرنال میں مروتی مانے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے 1960 سے 1965 تک بھارت میں اپنی طاقت کا لوہا منوایا اور اپنی جوڑ کے پہلوانوں کو دہشت زدہ کیے رکھا۔ اس کے بعد مہر دین نے کسرت کرنا چھوڑ دی اور پہلوانی کی طرف کوئی توجہ نہ دی، لیکن اپنی طاقت اور حوصلے کی بدولت پہلوانوں سے مقابلے کرتے رہے۔ 1968 کو دلی میں بھارت کیسری دنگل شروع ہوا، جس میں مہر دین پہلوان نے فائنل تک
अपने मद्दे मुकाबल आने वाले सभी पहलवानों को 4 मिनट और 25 सेकंड के मुख्तसर से वक्त में चित करके मसाल कायम की। दंगल के फाइनल में मेहरदीन से भारत के नामवर पहलवान मास्टर चंदगीराम की जोड़ ठहर गई। इस कुश्ती में मुंसिफी के फराइज सरदार कंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर ने सर अंजाम दिए। नाज़िर सरदार बलबीर सिंह कंवल के मुताबिक सरदार महेंद्र सिंह बेदी सहर के दादा बाबा खेम सिंह बेदी बाबा गुरु नानक की 13वीं पुश्त में से थे। रावी से लेकर काबुल कंधार तक आपके अकीदतमंद थे। आपको न सिर्फ हिंदू और सिख अपना गुरु मानते थे बल्कि मुस्लिम अवाम भी आपको इज्जत और एहतराम की नज़र से देखते थे। पहलवानों से आपको बेहद लगाव था और इस ज़माने के बड़े बड़े पहलवान आपसे वजीफ़ा पाते और आज भी उनका खानदान इसी जज्बे के तहत पहलवानों और फन कुश्ती की मदद कर रहा है। अपनी मालो दौलत से गरीब बच्चियों की शादी करना, जहेज और खाने पीने तक का इंतज़ाम करते। कंवर महेंद्र सिंह बेदी के बरादरान में जनाब टका जगजीत सिंह बेदी जज हाई कोर्ट पंजाब, जनाब कुंवर लाजिंदर सिंह बेदी MLA ज़िला फिरोजपुर पंजाब और जनाब कुंवर सुरेंद्र सिंह बेदी कमिश्नर पंजाब शामिल हैं। आपका शुमार भारत की जानी पहचानी और अजीम अदबी शख्सियात में होता था। इसके अलावा कमिश्नर पंजाब और इंडियन स्टार रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तादम आहर सदर भी रहे। अदबी दुनिया में आप कंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर के नाम से जाने जाते थे। मेहरदीन इंदौर में भी मास्टर चंदगीराम को 3 मिनट में चित कर चुका था। जब ये कुश्ती हुई तो अभी 45 सेकंड ही गुजरे थे कि मेहरदीन ने चंदगीराम की पट्टे निकालकर साफ चित कर दिया और कुश्ती के मुंसफ सरदार कंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर ने फैसला मेहरदीन के हक में कर दिया। जबकि 1968 में होने वाले मुकाबला में मेहरदीन पहलवान को मास्टर चंदगीराम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, मेहरदीन पहलवान ने भारत के मशहूर मरूफ फ्री स्टाइल रेसलर दारा सिंह फिल्मी को कई बार कुश्ती का चैलेंज दिया कि वो मेरे साथ जहां चाहें और किसी भी अंदाज में लड़ना चाहें, मेरा उनको खुला चैलेंज है। लेकिन दारा सिंह ने मेहरदीन का चैलेंज कबूल न किया। मेहरदीन पहलवान अपने कैरियर के मुख्तलिफ मराहिल में पाकिस्तान आते रहे और यहाँ के नामवर पहलवानों से कुश्तियाँ लड़ी और पाकिस्तान में मुनक्कद होने वाले मेला महमूद कोट तहसील हासलपुर जिला बहावलपुर और मेला मलक मियाँ गुलाम हुसैन दौलताना में कुश्तियों में हिस्सा लिया और वहाँ के पहलवानों में सैफुलदाद पोतरा रुस्तम बहावलपुर, कल्लू पहलवान बहावलपुरिया, अहमदू कसाई लोधरा, हाजी लालशाह पहलवान, रबनवाज लुड़का रुस्तम लोधरा जैसे शाहजोरों को शिकस्त दी। राज उर्फ बिल्ला पहलवान साबन वाला लाहौरी के साथ 2 कुश्तियाँ हुई, एक हारे एक में फतह हुई। जबकि अबासा पहलवान मुल्तानी रुस्तम हांगकांग, सैफ जट रुस्तम साहिवाल और शीदा पहलवान मनेला चैंपियन से बराबर कुश्तियाँ लड़ी। बाद में राजू राकट पहलवान रुस्तम हलाल और इस्तिकलाल सियालकोटी से मेहरदीन पहलवान की हथजोड़ी हुई, मगर 1971 की जंग की वजह से मेहरदीन पहलवान वापस भारत चले गए और इस तरह वक्त के 2 बड़े पहलवानों के दरमियान कुश्ती न हो सकी। बाद में सन 1985 में राजू राकट पहलवान ने भारत का दौरा किया और उस वक्त के तमाम भारतीय पहलवानों को कुश्ती लड़ने का खुला चैलेंज दिया, मगर कोई भी भारतीय पहलवान उनसे कुश्ती लड़ने के लिए आमादा न हुआ। मेहरदीन पहलवान हुसूसी तौर पर दिल्ली में राजू राकट पहलवान से मिलने के लिए आए और उन्हें बगलगीर होते हुए कहा कि पहलवान जी, आपकी भारत में कोई जोड़ नहीं, आप बड़े पहलवान हैं। और राजू राकट पहलवान के एजाज़ में मेहरदीन पहलवान ने बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया जिसमें भारत के नामवर पहलवानों ने शिरकत की। नाज़रीन, मेहरदीन का शुमार उस वक्त अखाड़ों की कुश्ती में भारत के नामवर कुश्तीगीरों में होता था और भारत के सभी नामवर पहलवानों से अपने फन का लोहा मनवा चुके थे। अखाड़े की कुश्ती के अलावा उन्होंने 1964 को ईरान में भारत की नुमाइंदगी करते हुए वहां के नामवर पहलवानों से कुश्तियां लड़ी और गोल्ड मेडल हासिल किया। कई बार यूरोप के दौरे भी किए और वहां के पहलवानों को हराकर अपने फन का लोहा मनवाया। मेहरदीन पहलवान देसी कुश्ती के बाद फिल्मों के मैदान में भी जलवागर हुए और सन 1982 में हिंदुस्तानी फिल्म अंग्रेजा में बतौर हीरो काम भी किया, मगर फिल्मी दुनिया में किस्मत ने उनका साथ न दिया। मेहरदीन पहलवान पैदा तो राजस्थान में हुए, मगर बाद में पंजाब के जिला जलंधर के एक गांव शाहकोट में मुकीम रहे। नाज़रीन, फन पहलवानी के मरूफ मुहक्किक और भारत के रुस्तम नामी किताब के मुसन्नफ श्री सरदार बलबीर सिंह कंवल ऑफ लंदन के खानदान के साथ मेहरदीन के बड़े गहरे मरासम थे और मेहरदीन उनके खानदान की ब्याह शादियों में भी अपने शागिर्दों के साथ शरीक होते और उनकी सारी बस्ती पहलवानों का वालहाना इस्तकबाल करती। सरदार बलबीर सिंह कंवल की वालदा जोड़ों के दर्द की मरीजा थी और मेहरदीन पहलवान उनकी वालदा के लिए अपने हाथों से तैयार करदा जादू असर तेल खसूसी तौर पर लेकर जाते। जब मेहरदीन पहलवान ने गुरदयाल सिंह रंधावा को गिराकर रुस्तमे हिंद का टाइटल हासिल किया तो वो अजमेर से सीधे जलंधर सरदार बलबीर सिंह कंवल के यहाँ गए
और उनके बापू से शिकवा किया कि सरदार जी सब पहलवानों के बारे में मज़ामीन लिखते हैं, लेकिन मेरे बारे में अभी तक कुछ नहीं लिखा। तो सरदार बलबीर सिंह कंवल ने मेहरदीन से कहा कि अब तुम रुस्तमे हिंद बने हो, अब तुम मजमून के हकदार हो। नाज़रीन, मेहरदीन पहलवान बहुत ही बारोब और पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे। आपका अंदाज़ गुफ्तगू इतना शीरी और दिलफरेब था कि हर मिलने वाला आपसे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता था। आप हर छोटे बड़े से बड़ी इज्जत और मोहब्बत से पेश आते। कुश्ती के अलावा मेहरदीन पहलवान को शेर व शायरी से भी गहरा लगाव था और फन पहलवानी से बेपनाह रगबत होने की बिना पर अपनी उम्र के आखिरी हिस्से तक भी कुश्ती लड़ने का हौसला रखते थे। मेहरदीन पहलवान के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की है। उनके एक बेटे का नाम मोहम्मद रशीद था, जो तालीम हासिल करके कनाडा चला गया, जबकि दूसरा बेटा अब्दुल मजीद उर्फ मजीदा पहलवान आजकल पंजाब शाहकोट में ही मुकीम है और अपनी खानदानी रवायात को बरकरार रखते हुए पंजाब भर में कुश्तियों के जौहर दिखा रहे हैं। मेहरदीन की बेटी का नाम राज था, जिसकी पंजाब अमृतसर में शादी हुई, जो इन दिनों लंदन में मुकीम है। मेहरदीन का एक भाई मोहम्मद जमील अलमरूफ जीता पहलवान भी अपने भाई मेहरदीन के नक्शे कदम पर चला और फन पहलवानी के मैदान में हिमाचल केसरी और राजस्थान केसरी रहा। जमील पहलवान अक्सर भारतीय अखबारात में इस बात का शिकवा करते कि राजस्थान की सरकार ने उन्हें ज़मीन देने का वादा किया था, मगर राजस्थान की सरकार ने वादा वफा न किया। हालांकि मेहरदीन पहलवान ने बजाते खुद भी इस सिलसिला में बहुत चक्कर काटे, मगर सरकार की तरफ से उन्हें ज़मीन ना मिली। फन पहलवानी की जिस बुलंदी पर मेहरदीन पहुँचे, वहाँ कम ही पहलवान पहुँच पाते हैं। भारत के नामवर शाहजोरों को शिकस्त देकर फन पहलवानी में अपनी ताकत की ढाक बटाने वाला यह शाहजोर बुढ़ापे में कैंसर जैसे मौजी मर्ज का शिकार हो गया और डॉक्टर संघारा सिंह अस्पताल जलंधर में जेर इलाज रहे। इस दौरान सरदार बलबीर सिंह कंवल और फन पहलवानी से वाबस्ता अहम शख्सियात ने मेहरदीन पहलवान की इयादत के लिए डॉक्टर संघारा अस्पताल गए और अस्पताल की इंतजामिया से कहा कि उनके इलाज मुआवजा का सारा खर्च हम अदा करेंगे। लेकिन अस्पताल की इंतजामिया ने सरदार बलबीर सिंह कंवल और उनके रुफका को ये कहते हुए मना कर दिया कि ये हमारे कौमी हीरो हैं और इनका इलाज हम फ्री करेंगे। इलाज मुआवजा तो होता रहा, मगर कैंसर जैसा मौजी मर्ज जाने के लिए नहीं आया करता, ये कब्र तक साथ देता है। वक्त के साथ साथ मर्ज फैलता गया, यहाँ तक कि ये अजीम शाहजोर 11 जनवरी 2006 को तकरीबन 70 बरस की उम्र में ब्लड कैंसर से जंग लड़ता हुआ जिंदगी की बाजी हार गया और पहलवान जी को शाहकोट में उनके अखाड़े में ही सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। फन पहलवानी को अपने इस मायानाज पहलवान पर नाज है और रहेगा, और जब तक फन पहलवानी जिंदा है, मेहरदीन पहलवान का नाम भी जिंदा रहेगा। आप सब दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि मरहूम के लिए दुआए खैर कर दे। ना मुकम्मल कहानी मुकम्मल हुई, ना तमाम फसाना तमाम हुआ। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।